Hello everyone. I'm Anurag Wadhwa, manager HRMS. So today we'll be seeing in our promotion module of cadre management in HRMS how we can define and declare an ABC for a particular cadre code, cadre level ID, and its intake mode. So basically, we'll be defining into the system, for example, for a particular cadre level like Chief OS, what are the eligibility conditions that system has to check, what is the mode of promotion, and all those conditions. नमस्कार सभी को, मैं अनुराग वाधवा, मैनेजर एचआरएमएस। आज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो एचआरएमएस के कैडर मैनेजमेंट का जो प्रमोशन मॉड्यूल है उसमें हम किसी भी कैडर लेवल के इनटेक मोड के लिए कैसे उसका एबीसी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या उसकी कंडीशंस रहेंगी, क्या मोड ऑफ प्रमोशन रहेगा, वो सारा जो डिटेल्स है उसको कैसे हम सिस्टम में उसकी एंट्री करेंगे। तो ये हमारा लिंक है कैडर मैनेजमेंट प्रमोशंस का, और ये लिंक जो एंट्री नेवीसी बाय यूनिट एंट्री है, इस लिंक के थ्रू हम सिस्टम में एंट्री करेंगे आपका किसी भी कैडर लेवल आईडी इनटेक मोड का जो एवीसी है। ये जब हम उस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट न्यू एंट्री का बटन रहेगा, जिसको ओपन करने पे ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। So this is our link, Cadre Management Promotion Module. Once we click on this link, entry in AVC unit entry, you will get an interface like this, wherein you can draft a new entry for declaration of AVC for a particular category in intake mode. The moment you click on this draft new entry, this blank form will open up. So what exactly are we doing in this form? For example, if we want to set the ABC of, say, operating department, we'll take up trains clerk. Okay, so this is trains clerk and chief trains clerk. So automatically pay level 6. And what is the intake type? This has been preset as 100% in our cadre master. So system will say, okay, these are the attributes for this particular cadre level. So what exactly are we doing? We are defining into the system that if I have to promote someone to the cadre code of trains clerk in the hierarchy level of chief trains clerk, pay level 6, what will be the intake type? It will be intake type of PQ 100%. Now, what will be the attributes? What will be the conditions? What will be the eligibility criteria that has to be declared into this form, so that system will identify who all are eligible to be promoted. तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बताया सिस्टम को कि मेरे को अगर किसी एक कैडर के लिए प्रमोशन करना है, जैसे यहाँ पर मेरे को ट्रेन्स क्लर्क के जो कैडर कोड है उसके पे लेवल 6, यानी कि चीफ ट्रेन्स क्लर्क के लिए अगर मेरे को इसमें चीफ ट्रेन्स क्लर्क में प्रमोशन करना है तो उसका क्या मोड रहेगा, वो 100% पीक्यू है। उसकी पोस्ट क्या है, सेफ्टी है, नॉन सेफ्टी है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, नॉन सिलेक्शन है। ठीक है, अब सूटेबिलिटी होगी या ट्रेड टेस्ट। तो अब यहाँ पर हमने इस कैडर लेवल आईडी के प्रमोशन के लिए अब हम पैरामीटर सेट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि इसका भाई प्रमोशन नॉन सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन नहीं है। ये प्रीसेट है क्योंकि अभी हम नॉन सिलेक्शन के लिए ओपन कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन हमारा फेज 2 में रहेगा। तो नॉन सिलेक्शन के लिए हमारा क्या टाइप हो सकता है, सूटेबिलिटी है, ट्रेड टेस्ट है। तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। सो सिंस एज ऑफ नाउ वी आर रोलिंग आउट ओनली नॉन सिलेक्शन, so this has been preset as non-selection. Once you have selected non-selection, what is the mode of promotion, whether it is suitability or trade test, you select it accordingly. Then if it is suitability, what are the modes through which you are judging the suitability of the employee, whether it is APR based, whether it is based on record of service, whether it is some written exam like that in senior clerk, trade test, whatever it is. So what has been a defined standard by which you are following the promotion, that has to be declared. Once an AVC has been declared, this standard AVC will be applicable on pan India basis. So if you are selecting any particular cadre level for which AVC has been already declared, it will not let you proceed, and it will show a message over here that AVC has been declared. You can click and view the AVC also. सो ये एबीसी यहाँ पर जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली ए मोड ऑफ क्राउड सोर्सिंग। सारे जोन्स जो हैं एबीसी इसमें एंटर कर रहे हैं, विच आर एज पर स्टैंडर्ड विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय रेलवे बोर्ड, विच दे आर फॉलोइंग इन देयर जोन्स।
तो उसको एंट्री करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, सिस्टम चेक करेगा, अगर उसमें उसकी कोई एबीसी बनी हुई है तो सिस्टम आपको यहीं पे मैसेज दे देगा कि इसका एबीसी ऑलरेडी बना हुआ है। आप उसको क्लिक करके देख भी सकते हैं, अगर कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है, आप उसको हमको हमारे नोटिस में ला सकते हैं। अगर ब्लैंक एबीसी नहीं बना हुआ है, किसी ने नहीं बनाया अब तक, उसके लिए प्रमोशन नहीं किया, तो आप यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड जो ये प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ इसके थ्रू अपने एबीसी बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमने सूटेबिलिटी कर दिया। नॉन सिलेक्शन के बाद अगर आपका सूटेबिलिटी ट्रेड टेस्ट है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर सूटेबिलिटी है तो किस मोड से आप सूटेबिलिटी एडजस्ट कर रहे हैं फॉर दिस चीफ ट्रेंस क्लर्क। तो हमारा पे लेवल 6 के लिए हम एपीआर बेंचमार्किंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सूटेबिलिटी में अब ये एडिशनल ब्लॉक है कि अब हमने पहले बता दिया कि कौन से कैडर लेवल के लिए कर रहे हैं, क्या मोड है, सूटेबिलिटी है। अब उस सूटेबिलिटी के लिए क्या प्रोसेस है, क्या हम रिटर्न एग्जाम कर रहे हैं, यस या नो। अगर कर रहे हैं तो क्या उसका सूटेबिलिटी एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम कर रहे हैं, यस या नो। रिटर्न टेस्ट क्वालिफाइंग है, यस या नो। ये सारा आपको यहाँ पर एंट्री करना है। सो फर्स्ट, हैविंग बीन डिक्लेयर व्हाट विल बी द मोड ऑफ प्रमोशन, now we are giving the details of what will be the details of suitability, whether it is a written exam based, whether if it is written exam, whether it is qualifying, skill test is required, best among failed is required or not, all these details. Next come the APR blocks, whether if you are judging suitability based on APR, yes or no. If you are judging suitability based on APR, what are the total marks of APR out of which you are calculating the marks? Say, for example, if you are calculating for last 3 years, we have entered 15. Then what is the minimum marks that you think are required? Assuming we write 6 or 8, depending on level, whatever is the standard. I'm just showing you the test, what all you can enter. तो अपना सूटेबिलिटी ब्लॉक के बाद अब नेक्स्ट ब्लॉक हमारा रहता है एपीआर का ब्लॉक। यहाँ पर आपको बताना है कि सूटेबिलिटी में आप एपीआर ग्रेडिंग काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप एपीआर ग्रेडिंग काउंट करेंगे तो टोटल एपीआर के कितने मार्क्स हैं, जैसे लास्ट 3 साल के हैं 5-5-5, तो टोटल 15 मार्क्स हैं। उस 15 में से मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए, 6 हो गए। अगर उसके बाद आपका नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर एप्लीकेबल है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, मान लीजिए 15 है या नहीं है। अगर इसमें हम रिकॉर्ड ऑफ सर्विस नहीं ले रहे हैं तो आप नो कर दीजिए। जहां जहां आपका एप्लीकेबल नहीं है वहां पे उसको नो छोड़ दीजिए। So next block comes record of service. If it is applicable, you selected yes, that okay, we are also considering the marks of record of service, and then what will be the maximum marks, that also has to be communicated over there. Once this blocks is done, then you have to give the details of medical fitness, whether medical fitness conditions are applicable. You require certain minimum medical standard that an employee has to possess for being promoted to this grade. Since it's part of single cadre, so system is by default showing you this A3. If you want to change, then you can update it as per whatever is the prescribed modalities. तो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के बाद आपका जो अगला ब्लॉक रहता है वो मेडिकल डिटेल्स का ब्लॉक रहता है, कि यहाँ पर अगर आपको इसका जो भी ये है मेडिकल कंडीशन, एग्जाम फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय प्रमोट होकर आ रहा है, उसको मिनिमम मेडिकल क्या पोजेस होना चाहिए, क्लासिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर है एबीसी क्राइटेरिया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स जो हमने ओपन किया है, यहाँ पर हम चाह रहे हैं आप वो सारा एबीसी क्राइटेरिया लिख दें जो स्टैंडर्ड बना रहता है। जैसे कि हमारे आईआरईएम में अगर हम देखें ट्रेन्स क्लर्क का, हमारे पास ये स्टैंडर्ड एबीसी क्राइटेरिया है, तो आप इसको पूरा कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया एंड यहाँ डाल दिया। सो व्हाट एक्चुअली आर वी डूइंग, we are basically this we are creating standard abc format in the system. So whatever has been printed by railway board in a separate circular or IREM, whatever is the base using which you are actually conducting all your promotion and selection, with the instructions that you are making them your base, all those written as it is text can be entered over here, so that next time whenever you will be clicking on this abc, you will be getting this text. So if you are having an ABC criteria authority, like based on which RB circular or which IREM we want that to be uploaded, तो यहाँ पर आपने जहाँ से कॉपी पेस्ट किया, आप उसका जो भी आपका बेस है, जिसके बेसिस पे आप ये प्रमोशन जहाँ से एबीसी उठा रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट कीजिए एंड उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो अब आपका रिटर्न टेक्स्ट भी अपलोड हो गया है एंड आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो बेस है, वो भी अपलोड हो गया है। तो अब कल को अगर आप देखें या कोई भी ये एबीसी खोल के देखेगा तो आपको ये सारे डिटेल्स दिख जाएगा कि बेसिक
उसका एवीसी का प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है. So as of now, we have seen these blocks. For in the first block, we have defined for which cadre code, which cadre level we are defining the AVC. तो हमने यहाँ पर बताया कि हम किस ट्रेन्स क्लर्क के चीफ ट्रेन्स क्लर्क पे लेवल 6 के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं कौन कौन प्रमोट होगा. नेक्स्ट हमने बताया व्हाट इज द मोड ऑफ प्रमोशन, वेदर इट इज सूटेबिलिटी और ट्रेड टेस्ट. नेक्स्ट ब्लॉक में हमने बताया अगर सूटेबिलिटी है तो व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न, वेदर इट इज रिक्वायर्ड, इफ यस देन व्हाट आर द डिटेल्स. Second stage में then we have explained if it is APR based, what will be the total APR marks that system will fetch. If it is record of service based, what are the record of service marks, whether medical is applicable, and what are the AVC criteria that has to be printed on the AVC. Then comes the next part. All this has been the process. Then next comes your last block where you have to show which all cadres are now applicable to be promoted to this particular cadre level. So in trains clerk pay level 6, which all cadres are eligible to be promoted. So we'll select okay, only pay level 4 can be of operating of trains clerk can be promoted to pay level 6. तो यहाँ पर what we are doing, we are declaring the feeder cadre level. So we select operating, then we select your trains clerk hierarchy level, only pay level 4 will be eligible. So what we are doing, we are defining that this particular pay level 4 senior trains clerk, these employees pertaining to this cadre level will be eligible to be promoted to this pay level 6, right? So यहाँ पर हमने this we have added pay level 4. Then comes whether you want certain minimum service condition to be made applicable, that they have to spend itna time. Then we are giving that you want that condition to be satisfied only in this feeder grade or combined feeder and lower feeder grade combined. So there might be a condition that okay, minimum service years of 5 years to be done in pay level 4 plus pay level 2 combined. If that is the case, then you select this. If it is only in pay level 4, then you select this. You enter what is the minimum service condition required. Then whether the educational qualification is certain education qualification is required to be possessed by employee for being eligible to be promoted. If yes, then what sort of this it is plain he has to be graduate or diploma holder, then you select simple and you select the criteria. Or if it is multiple combination like that in this WLI, that he has to be ITI with this MSW specialization in HR वगैरह, then you can select multiple combination and select accordingly. So we will go not required, we don't need anything. Whether you want additional departmental any specific condition that has to be, for example in case of accounts clerk we want them to be clearance of appendix 3 exam, all those if you want to enter, you enter it. Then whether there are post promotional requirement that you want them to be trained, whether there is initial training is required, how many number of days that are required, whether passing of training is mandatory, yes or no, what is the minimum age condition, whatever is there. Like in certain categories for LDC, not in LDC, normal PQ, there are certain relaxation for certain communities that if you are belonging to this cadre, you are exempted, you are given 4 years relaxation, 5 years relaxation, you have posted as Senting Jamadar and all those conditions. So if you want to enter those conditions, you just have to select and give the relaxation minimum and maximum, right? So this is how we are entering. Now consider a scenario where there are multiple, for example in ministerial, like CCTC pointsman, WRA, pointsman pay level 18, pointsman pay level 19, WRA, आपके assistant of parcel porter, all those are eligible. So here for every cadre level or a cadre level having separate multiple conditions, multiple educational qualification, if anything is being repeated, you have to add another row and add that particular cadre so that they can be made eligible in this AVC. So for example, if you are defining the AVC of WLI in personal department, which says that group D employees of all departments, yeah, group C employees
pertaining this conditions of all those cadre codes. So all those have to be one by one entered into the system. So wherever there is a separate condition which has to be communicated into the system, you have to add a separate row so that it will become part of that abc, right? सो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई जस्ट मैं इसको एक बार दोबारा थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने पहले ब्लॉक में तो हमने बताया कि हम इस चीफ ट्रेंस क्लर्क के पे लेवल 6 के लिए हम प्रमोशन का एबीसी डिफाइन कर रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा सूटेबिलिटी, उसमें सूटेबिलिटी में अगर हम कर रहे हैं तो एग्ज़ाम अगर रहेगा तो एग्जामिनेशन डिटेल्स, अगर उसका देन कम्स द एपीआर ब्लॉक कि आपके कितने मार्क्स में कितना आपको अचीव करना है, फिर रिकॉर्ड ऑफ सर्विस का रहेगा, फिर आपका मेडिकल के बाद यहाँ पर हम जो छाप रहे हैं जो आपका बेसिक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बेसिस पे आप इसको प्रमोशन कर रहे हैं, वो आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया एंड जो भी आपका बेस डॉक्यूमेंट है आपने उसको यहाँ अपलोड किया। तो यहाँ तो आपने सारा प्रोसेस बता दिया कि किस प्रोसेस से होगा। अब कौन प्रमोट होगा, कौन कौन से कैडर कोड, उनके कौन कौन से कैडर लेवल एलिजिबल हैं टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस प्रमोशन, इस फीडर कैडर डिटेल्स में हम वो बता रहे हैं। जैसे कि चीफ ट्रेन्स क्लर्क पे लेवल 6 के लिए हमको पता है सीनियर ट्रेन्स क्लर्क पे लेवल 4 एलिजिबल है, तो हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिलेक्ट किया, ट्रेन्स क्लर्क का कैडर किया और पे लेवल 4 सिलेक्ट किया। फिर हमने बताया कि भाई अगर इसको यहाँ इस एम्प्लॉय को पे लेवल 6 में प्रमोट होने के लिए कोई मिनिमम सर्विस कंडीशन एप्लीकेबल है, अगर है तो किस तरह की है। या तो वो हो सकता है कि हमें सिर्फ पे लेवल 4 में जितना साल गुजारा है मिनिमम कंडीशन वो होनी चाहिए, या फिर हो सकता है ऐसी कंडीशन हो कि पे लेवल 2 और पे लेवल 4 का कंबाइन, यानी फीडर ग्रेड और उसके नीचे का लोअर ग्रेड का कंबाइंड आपको 5 साल करना चाहिए। तो जो भी आपकी कंडीशन एप्लीकेबल है आप उसको सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर मिनिमम कितने साल गुजारने हैं वो डाल दिया। उसके बाद फिर अगर ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि जहाँ पर प्रमोशन से पहले उस एम्प्लॉय के पास कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी हो, अगर वो है तो फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि वो सिंपल है या मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। सिंपल हुआ तो ठीक है कि आपको सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ग्रेजुएशन प्लस स्पेशलाइजेशन इन एमएसडब्ल्यू या जो भी आपका वो कंडीशन है कुछ एडिशनल डिग्री के लिए, तो वो अकॉर्डिंगली आप उसमें सिलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। फिर आगे अगर अगर आपको प्रमोशन से पहले कुछ एडिशनल डिपार्टमेंटल क्वालिफिकेशन है जो कि मैंडेटरी है, जैसे कि अकाउंट्स में प्रमोशन के लिए अपेंडिक्स एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, तो अगर वो है तो आप वो करके यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। फिर आपको पोस्ट प्रमोशनल अगर रिक्वायरमेंट है, इनिशियल ट्रेनिंग अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, कितने दिन की ट्रेनिंग है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद कुछ एक कैटेगरीज हैं जहाँ पर कुछ कैडर्स को रिलैक्सेशन देते हैं प्रमोशन से पहले, तो उसमें अगर आपको मिनिमम एज का या मैक्सिमम एज का कम्युनिटी वाइज कोई भी रिलैक्सेशन बोर्ड के उसमें है तो वो यहाँ पर आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। अब अगर आपका कुछ ऐसा प्रमोशन है जैसे कि सीसीटीसी का अगर एंट्री है पे लेवल 3 में, तो वहाँ पर आपके पॉइंट्समैन 1800, पॉइंट्समैन 1900, पार्सल पोर्टर, डब्ल्यू वेटिंग रूम अटेंडेंट, ये असिस्टेंट कमर्शियल के जितने भी लोग एलिजिबल हैं, अगर जैसे मल्टीपल कैडर कोड्स या मल्टी एक ही कैडर कोड के मल्टीपल कैडर लेवल या एक ही कैडर लेवल के मल्टीपल कंडीशंस हैं कि किसी का 4 साल है, अगर 3 साल है तो ये एजुकेशन होना चाहिए, अगर ये एजुकेशन नहीं है तो 7 साल की सर्विस होनी चाहिए, जितने भी कॉम्बिनेशन आपको एबीसी में डालने हैं, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक एडिशनल रो ऐड करना पड़ेगा और वो सारा उसमें यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम फेच करे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इन एम्प्लॉयज को ढूंढ के आपको बता सके। तो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पर आप सिस्टम में आपका एंट्री करेंगे, सीडीसी ने इसके अंदर एंट्री किया, फिर हमारा नॉर्मल टास्क फ्लो है जहाँ पर आप इसको सबमिट करेंगे एंड अप्रूवल लेंगे। सो दिस एंटायर हैज बीन दिस इज द एंटायर प्रोसेस वेयर इन यू विल बी entering all the details into the system, and once you have updated all these details into the system, then it's a 3-stage task flow approval process wherein you will be submitting this for verification and approval, CVA and CA. Just सो दिस इज़ हाउ वील बी सेंडिंग इट। तो ये हमारे सीडीसी ने एंट्री के बाद सीवीए को मार्क कर दिया जो वो वेरीफाई करेंगे,
मैं फॉर टेस्ट इसके लिए सेम एम्प्लॉय को ही मैंने रोल्स दे रखे हैं, तो मैं उनके उसमें जाऊँगा। हमारे वर्कफ्लो के इनबॉक्स में कैडर मैनेजमेंट में ये आ जाएगा। यहाँ पर आप कैडर वाइज एंट्री के लिए ये प्रपोजल यू सिलेक्ट, ये थर्ड स्टेज हमारे सीए को फॉरवर्ड करेंगे। सेम इस एम्प्लॉय को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, ये आपका प्रपोजल है। एंड सीए अगेन नॉर्मल टास्क फ्लो, नाउ यू आर कस्टम्ड, ये अपना पूरा प्रपोजल देख सकते हैं। एंड इसको मैं अप्रूव कर रहा हूँ। So now our this has been approved. You can just go into cadre management, view avenue charts. All the AVC which has been approved will be shown over here. तो जितने भी AVCs जो कि अप्रूव हो चुके हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। मैं आपको यहाँ दिखा देता, तो ये ट्रेन्स क्लर्क का जो हमने अप्रूव किया वो सारा बेसिक डिटेल्स आ रहा है, और क्या उसका एबीसी है जिसको देखना है यहाँ पर हम दिखा देंगे कि ये एबीसी डिटेल्स है। जो ये हमने टेक्स्ट छापा था वो सारा यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट होके आ गया है। जो हमने बेस सर्कुलर अपलोड किया था वो सारा आपको सर्कुलर यहाँ पर रेफरेंस के लिए मिल जाएगा। So this is how we will be creating standard avenue charts for promotion in the system. So this is the view ABC link. You can click on this link. You can see this is the ABC. This is the text that has been printed and associate circular. These are the conditions that has been displayed. So this is how we'll be creating ABCs into the system. Thank you for joining.